अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आज शिक्षा जगत और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई पहल की शुरुआत हुई। दक्षिण फाउंडेशन एवं अंडमान निकोबार एनवायरनमेंट टीम के सहयोग से शिक्षा निदेशालय द्वारा ट्रेजर्ड आइलैंड्स नामक पुस्तक का विमोचन मेगापॉड कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित एक भव्य समारोह में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार उपस्थित रहे। उनके साथ डॉक्टर सचिन शिंदे, आयुक्त सह सचिव, शिक्षा सचिव एल कुमार, सूचना प्रचार एवं पर्यटन सचिव सुश्री ज्योति कुमारी, दक्षिण फाउंडेशन के ट्रस्टी डॉक्टर नवीन नंबूदरी तथा अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। समारोह में शिक्षा निदेशक श्री विक्रम सिंह, डीएफओ श्री बेहरा, विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक, एक्सिस बैंक के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं उपस्थित थे। समारोह का शुभ आरंभ पारंपरिक दीप प्रज्वलन से हुआ। स्वागत भाषण दक्षिण फाउंडेशन के जूनियर प्रोग्राम हेड सुश्री माधुरी मंडल ने प्रस्तुत किया। Literacy is not just about reading and writing. It is a fundamental tool that empowers individuals, fosters social development, and creates a more sustainable world. What a better way to celebrate this day than by launching a book that empowers our children to read, understand, and appreciate their own environment. The first Treasured Islands book came out in 1996 and it was developed by Ms. Sunita Rao from Kalpavriksha and the staff of Andaman and Nicobar Environment team. It laid the foundation for environmental education in the island schools. The new Treasured Islands book, developed by Dakshin Foundation and ANET, is a revised version aligned with the CBSE curriculum. The book has been revised based on the inputs from the Directorate of Education. Keeping the essence of the older version, we have redesigned the book, updated the information to be more crisp and easy to understand for the island students, and made the activities more engaging. Teachers can now use a variety of indoor and outdoor activities and games to make learning fun and interactive. The content has also been rigorously reviewed by subject matter experts. This book is more than just a resource. It is a tool for place-based education. For us, this means learning is not in abstract. It is rooted in the environment students see and live in every day. The Treasured Islands book is crucial because it provides our teachers a structured way to teach our students about the very trees they see on their school, the marine life that surrounds them, and the rich multicultural heritage that defines our islands. The book also makes ecological concepts tangible, relevant, and inspiring. This approach is fundamental to fostering a new generation of environmental stewards who have deep ties to their roots in the islands. This book would not have been possible without the support of the Directorate of Education, especially without the interest of the Director of Education, Mr. Vikram Singh, and the inputs of the staff of the Science Wing, Mr. Ram Pravesh, Mr. Chanchal Singha Roy, and Mrs. P. Shobha. Their support and valuable feedback have been crucial to this journey. Mr. Vikram Singh also agreed to bring this book back as a handbook for environment education for the middle schools of Andaman and Nicobar Islands. We are planning to conduct teacher training in the coming months to help the teachers understand how to use this book effectively. Vikramji has promised us that the Directorate will facilitate the teachers training along with us. He has also expressed his interest to print more copies for schools beyond the 500 copies Dakshin is handing over to the department school for the middle schools of Andaman and Nicobar Islands. Once again, I would like to welcome our esteemed guests, students and teachers to this event and hope this book is used widely by the teachers and students of these islands. इसके बाद ट्रेजर्ड आइलैंड्स पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसे विशेष रूप से मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। इस पुस्तक में द्वीपों की पारिस्थितिकी, प्राकृतिक धरोहर और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सरल और रोचक शैली में दी गई है।
मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक इस पुस्तक को केवल एक अध्ययन सामग्री न माने, बल्कि इसे एक मार्गदर्शक और धरोहर की तरह उपयोग करें। उन्होंने जोर दिया कि पर्यावरण शिक्षा बच्चों के भविष्य और उनके व्यक्तित्व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। Treasured Islands, fourth edition. This is again remarkable achievement in today's time when our reading habits have gone for a toss kind of thing. Again, congratulations to ANET, Dakshin Foundation, for remaining in touch with the administration, our directorate, and remain committed to the islands. Teachers भी यहाँ पर होंगे जिनके लिए ये किताब बनाई गई है, कि उनके लिए एक वर्कबुक के रूप में ये उपलब्ध है। अभी एक दो दिन से काफ़ी एक न्यूज़ चल रही है मैथमेटिक्स इन एंशिएंट इंडिया को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। पता नहीं आज एक ख्याल आया कि मान लीजिए अगर हमने पेटेंट करवाया होता जीरो को या पाई को, तो कितनी इनकम हमारी होती। मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारे यहाँ से ही ये सारी चीज़ें हुई है जो हम सभी जानते हैं अब, कि ठीक है अब वो लीनियर इक्वेशन और कैलकुलस, मैं सिर्फ एक मैथमेटिक्स एक ब्रांच की बात कर रहा हूँ, तो आज वेस्टर्न वर्ल्ड या मॉडर्न वर्ल्ड जो हमारा है वो पेटेंट से रिलेटेड है, और कई सारे देशों की इनकम जो है उस पर डिपेंड करती है पूरी तरह से, कि जो उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाई है तो उसके पेटेंट के कारण उनकी इनकम बहुत बढ़ गई है। तो अगर हमने अपनी जो हमारी जानकारी है, अगर हमने इसको पेटेंट करवाया होता या अपने हिसाब से उसको कंट्रोल किया होता, तो आज की तारीख में जिस पर कि पूरा आपका मॉडर्न साइंस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बेस है वो, तो हमारे हालात कुछ दूसरे तरीके से होते अर्निंग को लेकर के। पर कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक इकोनॉमिक गेन ही लेने के लिए पेटेंट होना चाहिए। ये एक तरह से ये भी बतलाने के लिए ज़रूरी होता है कि ये ज्ञान कहाँ से कैसे शुरू हुआ करके। अनफॉर्चुनेटली एटलीस्ट मैथमेटिक्स के बारे में मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है, तो हम लोग अपने ही क्लास में, अपने ही स्कूल के टेक्स्ट बुक में ये पढ़ते रहे अरेबिक न्यूमेरिकल्स करके। वो अब जा कर के ध्यान आया, अब जाकर समझ में आया कि नहीं, ये तो ना वो ऐसे साइकिल घूमते घूमते हमारे पास वापस आ गया, और हमारी चीज़ जो है वो हमें ही बताई जा रही है कि हमारे नाम से पढ़ो आप। तो इतिहास का चक्र है ये, उसमें बहुत ज़्यादा तो अब जाने से मुझे नहीं लग रहा कि हम कितना हासिल कर पाएंगे, लेकिन आपको एक तरह का कहते हैं कि एक तरह की जानकारी भी आपको इतिहास देती है कि आप समय रहते अपने बारे में जितना ज़्यादा जानकारी आपके पास है या जितनी ज़्यादा जानकारी आप हासिल कर सकते हैं उसको आप कोडिफाई करें, उसको आप जो विद्यालय हमारे हैं, जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे टीचर्स हैं, वहाँ तक आप उनको पहुँचा सकें। अगर ये काम हम कर पाते हैं तो भविष्य हमारा और बेहतर होगा, ये हम सभी लोग जानते हैं। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई आई है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इस चीज़ पे है कि आप अपने परिवेश को जानें, यू मस्ट नो योर एनवायरनमेंट। और जिस जगह पे हम लोग हैं, इतना रिच हमारा पूरा इकोसिस्टम है, और अनफॉर्चुनेटली जो हम एक टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, सेंट्रलाइज्ड टेक्स्ट बुक जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं पे एक फुटनोट की तरह ये दिखता है। और इस कमी को पूरा करने के लिए ये जो प्रयास हुआ है, जो पिछले लगभग 30 सालों से हमारे यहाँ इस पर काम चलता रहा, उसके एडिशंस आते रहे, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है।
कि आप जहाँ पर अपनी इकोलॉजी को, अपने बच्चे को बता पा रहे हैं और एक इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से बता पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, और उसमें जो टीचर्स हैं जो जिन्हें ये बात बतानी है वो इसको जानेंगे, पहचानेंगे, और इस पर वो आप कह सकते हैं प्रशिक्षण भी देने की बात होगी कि आप इसको कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, क्योंकि किताबों में होता तो बहुत है, पर क्या वो चीज़ कम्युनिकेट हम कर पाते हैं अच्छे तरीके से या नहीं, ये हमारा अगला चैलेंज इस चीज़ के लिए रहेगा। किताब अच्छी बन गई, पर इसके बाद हाउ डू यू कम्युनिकेट, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है, पर उस ज्ञान को जिसको कहते हैं ना डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज, हाउ डू यू डू दैट। तो वो अगर टीचर को बहुत ज़्यादा आता है लेकिन वो बच्चे को कैसे बता पाता है, वो एक अलग एक विधा है, एक अलग आप कह सकते हैं एक ज्ञान का एक अलग जरिया है, और वो हमारे लिए काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो मेरा ये अनुरोध अभी भी रहेगा एनेट से, दक्षिण फाउंडेशन से, क्योंकि आप इसी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा अनुभव है। आप जगह जगह, गांव में, शहर में, राज्य में, हर जगह आप इस चीज़ को बताते हैं, और आपके एक बहुत ही मूलभूत उद्देश्य में ये है कि आप इसको पहुंचाना चाहते हैं हर बच्चे तक, हर व्यक्ति तक, पर वो तरीका हर जगह आपका बदल जाता है, क्योंकि वो परिवेश बदल जाता है। अगर आप मान लीजिए कर्नाटक में हैं, या आप तमिलनाडु में हैं, या अंडमान निकोबार में हैं, या आप वेस्ट बंगाल में हैं, हर जगह उसका तरीका बदल जाएगा। वो एक ही तरीके से आप उसको अगर टीचर्स को बताएंगे कि ये इस ढंग से पढ़ाना है, या ये पढ़ लो इससे काम हो जाएगा, होता नहीं है। शिक्षा जो है वो एक बहुत ही अलग तरह की अनूठी विधा है। मैं कभी दिल्ली में डायरेक्टर एजुकेशन हुआ करता था, और उसके बाद मुझे अरुणाचल प्रदेश में कमिश्नर एजुकेशन बनने का मौका मिला। एक पूरी तरह से शहरी परिवेश, और एक पूरी तरह से जो आप कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र, अलग अलग तरह की जनजातियां जहाँ पे रहती हैं, दोनों में आपकी अप्रोच बदल जाती है, क्योंकि परिवेश पूरा का पूरा बदला हुआ रहता है। जब हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं, यहाँ तो एक तरह का द्वीप ऐसा है जिसका हो सकता है कनेक्ट आपको एक जगह से दूसरे जगह का बहुत ही कम हो। अकेला कनेक्ट है अगर आपका टीचर बाहर से जा रहा है तो वो अपनी प्रेजुडिसेस के साथ जाता है वहाँ पे, और उसके लिए बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपने यहाँ से किसी को अगर आप टेरेसा भेजते हो, तो वो तो पहले पोस्टिंग जब होती है अगर, तो उसी में थोड़ी परेशानी हो जाती है, और जब वहाँ हो जाती है तो वो हम लोगों ने, जब हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, तो हमारे साथ भी वो हार्ड एरिया, सॉफ्ट एरिया का एक लगा हुआ है। तो जो जगह मार्जिन पे हमारी जो जगह होती है, उसके बारे में जानने की हमारी जो जिज्ञासा होनी चाहिए, जो हम कहते हैं, वो कम होती है, क्योंकि वो पूरा एक कह सकते हैं इकोसिस्टम ऐसा आपने बना रखा है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा उसमें आपको हासिल करने के लिए उत्साह नहीं आप में रहता है। एनेट यहाँ पे बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, और इसके लिए मैं उससे जुड़े हुए जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, आप सबों को बधाई देता हूँ कि यही कमिटमेंट की ज़रूरत जो है, अगर हम लोगों में अगर रहे उस तरीके से कि जहाँ से आप जुड़े हैं उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से आप लगातार जुड़े रहेंगे, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन जो होगा उसकी क्वालिटी बहुत अलग होगी, वो एक लंबे समय तक सस्टेन कर सकती है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारा डायरेक्ट एजुकेशन है, 1 साल के लिए डायरेक्ट एजुकेशन है या 2 साल के लिए है, वो फिर नया जो आएगा वो अपनी नई चीज़ें लेकर के आता है, पुरानी चीज़ें जो है वो किनारे हो जाती है। कंटिन्यूटी जो होती है उस बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती है, जो एक टिपिकल गवर्नेंस का हमारा स्ट्रक्चर है उसमें। और उस लिहाज से मैं इस जो पुस्तक को यहाँ बनाया गया है, या जिसको हम लोग के सामने
रखा गया है उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हो, क्योंकि इसमें बहुत सालों का निचोड़ है आपका, और इसमें वाकई बहुत मेहनत हुई है, बहुत अच्छे तरीके से हुई है। इसका कुछ प्रतिशत भी अगर हमारे शिक्षक बच्चों तक पहुंचा पाएंगे और उसमें हमारा विभाग जो है अगर स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर उसको फैसिलिटेट कर पाता है, तो यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि जो आने वाली हमारी जनरेशन है जो भी पढ़ाई कर रही है, स्कूलों में है, 6ठी 7वीं और 8वीं की हमने इसमें बात की है, तो अगले 5 6 7 सालों में जब वो एक यहाँ पर एक जागरूक नागरिक के रूप में आगे आएंगे, तो उनके पास जानकारी ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो जुड़ सकते हैं। अभी हम लोगों ने द्वीपों में कई कुछ छोटे छोटे काम शुरू किए हैं। एक काम हम लोगों ने भी शुरू किया था, स्पाइस प्रवाह का शुरू कर रखा है। स्पाइस प्रवाह में हमने क्या किया है कि पूरे दिगलीपुर से आप कह सकते हो कैम्बेल वे तक हम लोगों ने सर्टेन स्पाइसेज जो होते हैं, सिनेमन एक स्पाइस होता है, क्लोव है, नटमेग है, ब्लैक पेपर है। बच्चे नटमेग देखा है कभी? नटमेग नाम सुना है कभी? जायफल बच्चों को पता है बेटा? देखा है? हाँ। तो ये मैं ये चाहता हूं कि ये चीजें अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसकी जानकारी कैसे जनता तक, आम जन के पास हो, हर घर में हो, जिससे कि उसको ये अपना सके और उसको अच्छे तरीके से चला सके, कर सके। तो जब आप ट्रेजर आइलैंड जो है, आप जानते हैं कि हम स्पाइस ट्रेड रूट का बहुत बड़ा एक पार्ट रहे हुए हैं। कॉलोनियल हिस्ट्री जो हमारी है उसमें इसका एक बहुत बड़ा स्थान रहा है स्पाइस ट्रेड का। और अगर हम अपने यहाँ देखेंगे तो हमारे यहाँ की जो आप कह सकते हैं वेदर कंडीशंस हैं, उसमें स्पाइसेस का होना बहुत ही आसान है। और इसीलिए मैं ये बताना चाहूँगा, चूँकि छोटे बच्चे हैं, कुछ टीचर्स भी हैं, तो एक आध छोटे मोटे हिस्ट्री की चीज़ें बता देता हूँ। इंडोनेशिया जो है हम लोगों से बहुत दूर नहीं है यहाँ से। तो एक आइलैंड है, उसका नाम है रन, RUN। रन आइलैंड जो है वो इंडोनेशिया में सुमात्रा बोर्नियो के बीच में एक जगह आती है, वहाँ पर है। छोटा सा आइलैंड है, बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। तो आज से लगभग 350 साल पहले उस आइलैंड पे कब्जा करने के लिए बहुत लड़ाई हुई है ना। उस पे लड़ाई करने वाले थे अंग्रेज, और दूसरी तरफ जो थे वो थे डैनिश लोग थे, डैनिश और डच, आई जस्ट फॉरगॉट, सॉरी, डच थे, हाँ। तो डच, ये दोनों के बीच में खूब लड़ाई हुई कि इस पे कब्जा करना है हमको, रन आइलैंड पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नटमेग का जो ट्रेड था उसको कंट्रोल करना चाहते थे। क्यों कंट्रोल करना चाहते थे नटमेग का? क्योंकि हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ब्लैक प्लेग। तो यूरोप में ब्लैक प्लेग बहुत परेशान किया था, और ये बताया गया कि अगर आप नटमेग रखते हो, उसका यूज करते हो, तो ब्लैक प्लेग से आप बच सकते हो। तो सारे लोग भागे वहां से, जहां से नटमेग मिलता है वो कब्जा करने के लिए आए, और वो लड़ाई कर रहे थे उस नटमेग के लिए। तो वो छोटे आइलैंड पे दोनों में लड़ाई हो रही थी। उसी वक्त अमेरिका में भी लड़ाई चल रही थी उनके बीच में। तो अंत में वहां पर एक आइलैंड था उनके पास, न्यू एम्स्टर्डम करके एक आइलैंड था डच के पास। तो उन्होंने नेगोशिएट किया, और एक हिस्ट्री ऑफ ब्रेदा करके एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ ब्रेदा। तो उसमें उन्होंने नेगोशिएट किया। तो डच वालों ने कहा कि भाई आप न्यू एम्स्टर्डम ले लो, हमें तो रन आइलैंड जो है हमारे पास रहने दो, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी तब, वो मान गए कि ठीक है, चलो आप न्यू एम्स्टर्डम हम ले लेते हैं, और डच जो है रन आइलैंड में। जानते हो न्यू एम्स्टर्डम आज क्या है? न्यूयॉर्क है।
आज वही न्यू एम्स्टर्डम जो है वो न्यूयॉर्क है। तो स्पाइस ट्रेड जो है उसके कारण दुनिया में कितनी तरह की चीज़ें हुई है, ये एक हम लोगों के लिए, बच्चों को आप किस तरह से बताते हो, किस तरह से आप इसको इंटरेस्टिंग बताते हो, जो इस किताब में लिखा हुआ है उसको कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो जिससे कि बच्चा एक्साइटेड रहे और उसको याद रख सके। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसके लिए ही ज़रूरत है कि हमारे टीचर्स को, जब आप इस वर्कबुक को यूज़ करने के लिए जो भी आप डिसाइड करोगे, जो भी डिज़ाइन करोगे, छोटे छोटे कैप्सूल अगर आप डिज़ाइन करते हो, तो उसमें इस तरह के ट्रिवियाज अगर आप रख पाओगे तो वो याद करना उनके लिए बड़ा आसान रहेगा। अदरवाइज ये साइंस की किताब की तरह रह जाएगा और उससे फिर बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे अच्छा मेरा तो साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है, जबकि ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये हमारे एग्जिस्टेंस की बात है, हमारे सर्वाइवल की बात है। और इसीलिए मेरा अनुरोध है कि इसको जब आप टीचर्स के बीच में ले जाते हैं तो उसके लिए और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और उसके लिए अच्छे से लेसन्स प्लान अगर आप कर पाएंगे तो ये बहुत ही कारगर होगा। और हमारे बच्चे अगर एक बार इस तरह की कहानियाँ समझ लेंगे, कनेक्ट कर सकेंगे अपनी लाइफ से, तो वो उनको हमेशा याद रहेगा। फिर उनके ऊपर है कि आगे अपनी लाइफ में वो क्या स्पेशलाइजेशन चुनना चाहते हैं, क्या वो उससे कनेक्ट करना चाहते हैं। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जो है वो बिखरी पड़ी हुई है। जो हम कहते हैं आज की तारीख में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, अगर आप इसके साथ अगर वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ले आएंगे तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा और हम लोग जो है इसको सही उपयोग में ला पाएंगे। मैं पुनः आप सब लोगों को और ख़ासकर इस किताब से जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह का जो सहयोग है वो अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग हासिल कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिस पे हम लोगों को साथ में मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है, जो कि हमारे लिए, हमारे न सिर्फ इन द्वीपों के लिए पर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, जो आप कह सकते हैं पूरे विश्व के लिए एक फ़ायदे की चीज़ हो सकती है। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए जो है ये बहुत ही उपयोगी इस तरह का सहयोग हमारा हो सकता है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। दक्षिण फाउंडेशन के ट्रस्टी डॉक्टर नवीन नंबूदरी ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को सशक्त बनाना है ताकि वे विद्यार्थियों को पर्यावरण शिक्षा से जोड़ सके और उन्हें प्रकृति के प्रति जिम्मेदार नागरिक बना सके। Chief guest Dr. Chandrabhushan Kumar, and for the lovely speech that you just gave, and we'll definitely follow up on your suggestion to work with the teachers a lot more to make this accessible and available to all the children across the islands, from including the Nicobars as well. And also our heartfelt gratitude to all the other dignitaries on the stage, Srimati Jyoti Kumari, Dr. Sachin Shinde, Special Commissioner, Shri Kumarji, L. Kumarji, all of you, thanks a lot for being here and gracing this occasion. It means a lot to us, and for all the support throughout the mission of getting this book together. Special thank you to Vikram Singh ji, Director of Education, and his entire team. It's been they've been very supportful, and without their support we wouldn't have been able to get this book launched. Their belief in us, in our work, and in understanding the importance of local place-based education has been really crucial to get this book launched. We also thank Shri Ram Parvesh, Shri Chanchal Sinha ji, Srimati Shobna, and the entire science wing for their valuable guidance and mentorship throughout this journey. And this project was made possible by generous financial support as well, and MM Muthaiya Research Foundation helped support a lot of the production of this book. We also would like to express our profound thanks to the Axis Bank Foundation, Axis Bank folks who are also here. We have Mr. Shubrata
Chakrabarti here. He's the cluster head of Calcutta. We also have representatives from the branches here in the Andamans as well. We have Mr. Faiz Hydari, who's the Port Blair branch head. We also have Mr. Muhammad Islam and Mr. Muhammad Shihab from the other branches here as well. And the support came through the Access Care initiative, where the employees of the Axis Bank actually put in from their own contribution to from their salaries to make this grant happen, which basically helped support all the printing and publishing of this book. So a huge thanks to the Access Care initiative. We also thank the members of the press who are here today. Thanks for being here and helping cover a lot of this. We really hope this message goes out to the larger public in the islands. And to all the teachers and students who are here, really appreciate all of you taking time out. It's a Monday morning, so really appreciate all of you taking time out and being here. A huge thanks for all of you for coming. And we're really looking forward to seeing this book come to life in your classrooms, and that's where we've been working on this for the last more than 10 years. So we'll be really happy to see these books come alive and all of you engaging with the textbook a lot more. And we'll be here around. We are based in North Vandoor. We'll be around here to support through this entire journey. I'd also like to acknowledge the many hands that shaped this book. Sunita Rao, as Madhuri mentioned, was the first person to put the first edition together. And this book was published 25 years ago. So without her vision, this book wouldn't have been in existence right now. This version of the book began 10 years ago, the fourth edition, and it was a collaboration between MCVT, ANET, and Dakshin, and the Srishti School of Design, and all of us together make it what it is today. So a big support to all the big thanks to all the others who unfortunately are not here today. Thanks to all the designers and illustrators. There's a lot of illustration and design work that's gone into this book to make it appealing to the children. And thanks mainly to our incredible team of reviewers, designers, and content producers, Mr. Manish Chandi, Bharat Ahuja, Chaitanya Arjun Vatkar, Madhuri Mandal, Meera Anna Uman, Navendu Page, Nitya Mohanty, Rajat, Tanmay, Karishma, Vidisha, and Apna. Lots of people have put in a lot of effort into making this version happen. And a special thanks goes to Madhuri and Anand Rao for all the coordination between the Directorate of Education and the team at Dakshin. And lastly, I'd like to also thank the manager of the Megapod Resort for all the logistical support. It's been a breeze. Extremely thankful to all of you. And finally, yes, thank you all for being part of this milestone. We really appreciate all the support. And as the Chief Secretary said, it's not just us, the team here at Dakshin, but it's a lot of others who have been behind the scenes and make this version happen. So a big thanks to all of you. Thank you. ये पुस्तक विमोचन न केवल शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि द्वीपों के बच्चों में पर्यावरण चेतना और अपनी प्राकृतिक धरोहर से जुड़ाव की दिशा में एक अहम कदम भी है।